You're watching Truth versus Hype. It is deep into the night here in Kanpur in Uttar Pradesh, and what we are seeing is this extraordinary queue of thousands of young men that have gathered from the hinterland of the state and have come here to become part or attempt to become part of India's future army. They are amongst the first group that is attempting to join the government's contentious Agniveer scheme, which for the first time is going to break from past and try and recruit mostly temporary soldiers who will only be serving for 4 years. A controversial move that sparked protests across the country, with many saying that this is unfair. But yet they have gathered here, as you can see, in such large numbers, so large that the police are struggling to control them before they actually go for their final test. What has brought them here? Spending hours of their night waiting for a shot at entering the army. Is it distress, India's chronic jobs problem, or is it devotion to serve the larger national cause? That's what we're going to try and find out on Truth versus Hype. भारत माता की जय! भारत माता की जय! Hours before the queues begin, the men had gathered here at this government stadium in Kanpur, which is turned into an open-air dormitory. They have come here hours in advance to try and be one of India's future soldiers. Even at the late hour, the josh is high. Over 3,000 of them who've come from Kannauj district, 2.5 hours west from Kanpur. The trials begin just before dawn and some are trying to get sleep. Most though will stay up all night, talking or making their way to food stalls. तो ज़्यादा ये जो भाई हैं हमारे जो फौजी में भर्ती होना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं? सर ये लोग चाय अंडा पसंद करते हैं, खाना भी पसंद करते हैं सर, रोटी ज़्यादा सर। और आप पहले दिन से ये चला रहे हैं? जी जी, हम मैम 19 तारीख से जो है इनकी सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा। और 50 रुपए रेट में जो है हम इनको देते हैं खाना। तो ये सेटअप किसने किया ये है? सब हम लोग अपनी तरफ से खरीद करके लाए हैं। क्या पसंद करते हैं आप? अंडे। दौड़ से पहले अंडे। क्या वजह है उसकी? एनर्जी आता है उससे। अच्छा, तो अभी कितना टाइम रह गया आपको जाने के लिए? 2-2.5 घंटे में फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा। The stakes are too high to go to sleep. तो ये बताइए आप लोग कब आए यहाँ? कितनी देर हो गई? 3 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। लगभग हो गए 5 घंटे। लमसम में हो गए 5-6 घंटे हो गए। 2 बजे 2 बजे दोपहर से हैं? 6 बजे सवेरे से आए हुए हैं? 6 बजे शाम को आए? 2 बजे आ गए थे यहाँ पे। अच्छा। आपका टेस्ट कितने बजे से स्टार्ट होता है? 1 बजे से प्रारंभ बता रहे हैं। रात के 1 बजे से प्रारंभ में लग जाएंगे हम लोग। अच्छा, एंट्री 1 बजे से एंट्री। 1 बजे से एंट्री होगी और दौड़ फिर कब, मतलब आपका मेन टेस्ट कितने बजे? 3-4 बजे से होगी। 4 बजे से? 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 10 बजे तक हो जाएगा। तो रात को आपको नींद आएगी बिल्कुल भी? सुबह का वेट कर रहा हूँ मैं, बस एंट्री का इंतजार है मुझे। आप लोग क्या थक नहीं जाएंगे जैसे पूरी रात? और अगर सो जाएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। एक अगर सो जाएंगे शरीर खराब हो जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए जागते रहेंगे तो शरीर सही रहेगा। अगर सो के उठेंगे शरीर मतलब भी जाम हो जाएगा। बहुत बादाम खाए हुए हैं। तो ये कब से आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? कितना टाइम हो गया? मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है तैयारी करने का। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। एक सेकंड आराम से 4 साल हो गए तैयारी करते हैं, अब भर्ती आई है। अच्छा, 4 साल की नौकरी है। 4 साल से की नौकरी है तो हम लोग खुश नहीं है। These are among the first tryouts under the Agnipath Scheme, which was launched in June this year. It aims to recruit about 40,000 soldiers into the Indian Army by December. But for the 40,000 jobs, there have been close to 35 lakh registrations. This means that only about 1 in every 90 are going to make it. Of the lucky ones who get in, most won't be staying long after the dramatic change in rules.
Until now, all recruitment to the armed forces were permanent for 17 years. Now, for the first time, only a handful, 25%, will get a permanent slot. The remaining 75% will be taken on for 4 years and compulsorily retired after that. Those that retire get a severance package of close to 12 lakhs at the end of 4 years. No pensions or benefits though, saving the government crores of payouts. In fact, data shows that the armed forces spend almost as much on pensions as they do for salaries for existing personnel. In 2021, for example, the budget documents show that the three armed forces together spent about 1.3 lakh crore on pensions. And in the same year, they spent about 1.1 lakh crore on salaries. But the army claims that recruiting these Agniveers is not a cynical exercise in cost cutting, but is in fact to build an agile, younger, tech-savvy fighting force, and also to help quickly fill the large number of vacancies that have mounted, especially in the 2 years of the pandemic when the recruitment to the armed forces fell dramatically. But just days after Agnipath was announced, violent protests erupted across the Hindi heartland. Protesters furious that after a 2-year standstill on hiring, when it finally opened, it was only for 4 years. But the government pushed ahead, and by August, recruitment rallies for the army like these had begun, and thousands began turning up. Namaste, bhaiya. Many of those we met, like this group that had come earlier in the day to Kanpur, told us that the love of the army overrides the new rules. आपका कल है? अच्छा, आप ऑलरेडी आज आ गए हैं? यस सर, आज हम लोगों की शाम को एंट्री होगी, तो कल हम लोगों का भर्ती जो रनिंग वगैरह है फिजिकल कल होगा। तो आप फौज में क्यों भर्ती होना चाहते हैं? सर, फौज में हम लोग देश सेवा के लिए सिर्फ करना चाहते हैं, सिर्फ देश की सेवा के लिए। हाँ देश सर, की सेवा। यस सर। आप? सर देश की सेवा के लिए हम भी। आपको फौज में क्यों करना है? देश की सेवा के लिए सर, बचपन से जुनून था। सर हमें ये नहीं है 4 साल की हो गई तो मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मेरे देश सेवा में फिर भी वही उतनी है और करना चाहता हूँ दिल से। तो जैसे ये स्कीम में जैसे बता रहे थे कि सिर्फ 4 साल का हो सकता है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं, बचपन से सर जुनून छाया हुआ है मेरे दिल में। सर देश सेवा 4 साल की हो, 20 साल की हो, देश सेवा तो देश सेवा है सर। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं है 4 साल की बात है? कोई दिक्कत नहीं है सर। और 4 साल के बाद अगर फिर आपको नहीं रहे, फिर क्या करेंगे आप? सर और भी हमारे पास ऑप्शन है, काफ़ी नौकरियों के जो है हम लोगों के साथ में हमारे साथ जो भी कोर्स वगैरह अंदर कराए जाएंगे, तो उसके थ्रू हमें दूसरी नौकरियां पाने का अवसर मिलेगा सर। 20% लिए जाएंगे उसमें से, 25% जो हमारा परमानेंट हो जाएंगे उसमें 25%। और जैसे आप लोग में से कोई नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? नहीं हुआ तो फिर तमाम का कोटा है, मतलब उसमें भी अपना ट्राई करेंगे ना। We hear the same sentiment late into the night as well. अच्छा, ये बताइए कि आप लोग फौज में क्यों भर्ती होना चाहते हैं? सर जुनून एक एक करके देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा। आप भैया? देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करने के लिए। फौज क्यों भर्ती करना देश की चाहते हैं? सेवा करना है। हमेशा से आपको फौज में भर्ती होना था या और भी मतलब हमेशा कोई होता था? बचपन की इच्छा है। But we also hear strong criticism of the new rules. ये जो अग्निवीर जो स्कीम आया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ तो आपको सिर्फ 4 साल तक ही होगा। इससे खुश नहीं है हम लोग। एक सेकंड आराम से एक इससे खुश नहीं है अग्निवीर से। आप खुश नहीं है? मजबूरी में देख रहे हैं सर। मजबूरी में देख क्योंकि और निकलना ही नहीं है, इसीलिए। नहीं, आप क्यों खुश क्यों नहीं है बताइए? ये 4 साल की होगी इसलिए क्या? ये मतलब 4 साल पहले ट्रेनिंग की होती थी ना। अच्छा, 4 साल में क्या कर पाएंगे? सर 4 साल की तो पहले ट्रेनिंग होती थी। 4 साल की पहले ट्रेनिंग होती थी। अब बताओ 4 साल में क्या होगा? सर बताओ। मैं लगूंगा जब तक ट्रेनिंग फाइनल होगी, जब तक रिटायरमेंट, काम खत्म। तो आप चाह रहे थे कि जैसे पहले सिस्टम था वैसे वही होना चाहिए था सर। पहले वाला सिस्टम होना चाहिए। आप सब भी यही मानते हैं कि ये अग्निवीर ठीक नहीं है? सर आप सर निकलिए, वो देखनी तो पड़ेगी। लेकिन अगर आप इतना खुश, अगर आप खुश नहीं है स्कीम से, तो फिर आप भर्ती के लिए क्यों आए? क्या करें मैम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। बेरोजगार है मैम, घर पे बातें सुनी नहीं जा रही हैं। बाप से पैसे मांगो कि सर पिताजी मुझे पैसे दो, बोलते कमाने लायक हो कुछ देखो बाहर निकल के। अच्छा, ये बात ही बताइए कि जैसे पूछ रहे थे कि अगर आप खुश नहीं है तो क्यों फिर भर्ती यहाँ क्यों आए हैं? फिर सर एक बेरोजगारी की समस्या है, आगे कोई ऑप्शन नहीं है दूसरे। These large numbers and the hardship that they endure
speaks as much to the enduring allure of the armed forces as much as it does to the chronic jobs crisis that is particularly acute in the Hindi heartland. My colleague Maryam Alavi and I have come to the industrial town of Kanpur. Our reporting on the UP elections this year had brought us to Kanpur, once UP's thriving industrial hub. We'd come to investigate the state government's startling claim that it had created 2.88 crore jobs in 5 years, 4 times more than what had been promised in the BJP manifesto. The breakup of the 2.88 crore provided by the government, however, threw up more questions than answers. Government jobs came to only 8 lakhs. Self-employed was 1.6 crores. MSME or small business jobs was 1.2 crores. But there was no clarity on whether these were new MSMEs or old ones. नए इंडस्ट्रीज खुले हैं हाल ही में, लाइक पिछले 5 साल में? खुले नहीं है, बंद जरूर हुए. When we spoke to small business owners, they told us they couldn't recall any new businesses that had come up. कोई नहीं. यहाँ पे सरकार है, उनका कहना है कि पिछले 5 साल में उन्होंने 32 लाख न्यू MSMEs खोले हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है. देखिए, आंकड़े और वास्तविकता का धरातल दोनों में बहुत अंतर होता है. बहुत अंतर. और सब लोग यहाँ पे देखे जाए तो सब लोग या तो हंस रहे या फिर सिर हिला रहे हैं. आपके ध्यान में यहाँ कहीं पे भी कोई नए यूनिट खुले हैं पिछले 5 साल में जिसमें नौकरी मिला है? सरकार जो है नहीं, कोई नहीं. सरकार क्या आपको कोई यहाँ पे? नॉट टू माय नॉलेज. वी हर्ड दैट नोएडा में, उधर NCR में, कुछ यूपी वाले NCR में काफी यूनिट बाहर की, जो बाहर चाइना वगैरह से काफी इधर आ रही है और काफी चाइनीज यूनिट्स वहाँ पे लग रही हैं. ये मेरे को सुनने में आया है. एग्जैक्ट. लेकिन यहाँ पे कानपुर इलाका, कानपुर में नहीं. To cool the Agniveer job distress fires, the government promised quotas for the Agniveer tryouts who don't make the final cut. 10% in the Ministry of Defence, 10% in central police departments. Some BJP states promised priority in police recruitments. But at the Kanpur trials, not all are convinced. जब 4 साल हो जाएंगे तो जैसे कुछ लोग बाहर हो जाएंगे तो सरकार कह रही है कि आपके लिए कोई नौकरी का वो प्रावधान कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस में दिलासा दिया जा रहा है. हमें लग रहा है कि जब ये होगा जब जानेंगे हम. आप नहीं मानते हैं इसको? क्यों? कि जैसे कह रहे हैं कि आपको कहीं, जैसे कि सेंट्रल पुलिस में अगर आपको वहाँ भर्ती किया जाएगा या और जगह आपके लिए दिया जाएगा, उस पर आप भरोसा नहीं करें? जी बिल्कुल भरोसा नहीं. इन लोगों पर कुछ भी कह के कुछ भी कर देते हैं. अगर उन्हें ये दूसरी मतलब की नौकरी मुझे देनी होती तो ये 4 साल की नहीं करते. तो यही नहीं, मतलब कि कम करते हैं तो इतनी कम भी नहीं करते, मतलब कि मीडियम पे तो छोड़ ही देते हैं. बिल्कुल खत्म ही कर दी 4 साल में. There's also skepticism over the government's claims that one of the benefits of the new scheme is to produce tech-savvy soldiers. The candidates tell us that their written exam is the same as earlier. जो एक लिखित का भी देना पड़ता है, वो तो बाद में होगा. पहले फिजिकल 2 महीने बाद होता है. अभी फिजिकल होगा, उसके बाद बीम लगाए जाएंगे, फिर मेडिकल होगा नेक्स्ट डे. देन 2 महीने बाद जो होगा वो रिटन होगा. तो रिटन जो टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे? क्या सब्जेक्ट रहते हैं? हमारा मैथ होता है, हिंदी होता है, GS GK होता है. GSG क्या होता है? GS और GK मतलब जनरल साइंस और जनरल नॉलेज. अच्छा, ये होता है. और नंबर रीजनिंग भी होती है, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी आते हैं. रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं. तो ये पहले से एग्जाम चलते आ रहा है? पहले से यही क्वेश्चंस आते थे. क्वेश्चंस मतलब जो सिलेबस है यही आ रहा है. अच्छा, ये मतलब अग्निवीर के अंदर सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है? जो पहले सिलेबस था वही है? चेंज नहीं आया है, लेकिन एज में चेंज आया. तो 2 इयर्स का कंसेशन दिया गया उन बच्चों को. अच्छा. GD वालों को. अच्छा. और क्लर्क में तो था ही पहले से 23. अच्छा, तो ये जो कह रहे थे कि आर्मी की, जैसे आप लोगों का जो टेक सेवी, मतलब आप कितना डिजिटल और ये सारा इंटरनेट वगैरह सब, वो सब भी जानकारी है, उसका कोई एग्जाम, वो एग्जाम का हिस्सा नहीं है? ऐसा अभी कुछ नहीं है. अब नेक्स्ट जो रैली भर्ती आएगी उसमें हो तो हो सकता है, बट अभी नहीं कुछ है. अभी वो पहले का एग्जाम है रिटन, वही रिटन एग्जाम आ रहा है. अच्छा, ठीक है. That's interesting because the army had pitched it as saying that one of the advantages of this scheme will be that we'll have these tech-savvy youngsters, but the exam is the same. So how will they judge whether they're tech-savvy or not?
It's very unclear, Vasu. We have all these jargon and these key buzzwords that are being tossed around: future ready, tech savvy, etc. But it's still very unclear how the new recruits are going to be tech savvy, how they're going to be digitally more knowledgeable, and how they're going to be more future ready. As midnight approaches, the queues begin. It's now even further into the night, Mariam, and these potential Agniveers are on the move. They're now going from where they were earlier, where they were spending most of the night, to the next point in their journey. Yes, so now they're moving to another ground which is slightly further ahead, where they will go through that initial screening, wherein their height will be checked, the initial screening of their documents will be done. Okay, and so as we can see, this is going to be a long night, and this is just one more step in their journey to try and become a future soldier in the Indian Armed Forces. The police at times struggle to keep the crowds in check. Late into the night, the queues are so long that we have to play the video of it in fast forward to convey the full extent. So it's now the early hours of the morning. We're back at the stadium where we'd filmed with the Agniveer tryouts. They of course had left from here late last night. We saw those late night queues, and at some point in the early hours of dawn, they would have actually taken that physical test, the run, which is the main aspect of that test. And typically these events have always been allowed to be covered by the media, but because of the sensitivity surrounding this entire Agnipath Agniveer scheme, the media has largely been kept out this time. But the army has released videos from inside the stadium that show us what goes on inside there. So the first thing that they do is a height test. The candidates need to be at least 5 feet 5 inches. Then their documents are checked to make sure that they fall within the age limit for the scheme. They frisk for drugs, etc. And then the all-important race. They need to run 1.6 kilometers in about 5.5 minutes. The handful who make it will go through a medical examination and a written test later. But the vast majority of those who don't make it go back home. The morning after, as the Agniveer tryouts begin their journey home, most of those we meet have been rejected. आप में से कोई हैं जिनका पास हुआ, मतलब अगले उसके लिए? अंदर हुए लड़के बहुत हुए हैं पास। अच्छा, वो अभी भी अंदर ही हैं? अंदर ही हैं सर अभी। अच्छा, तो क्या क्या मतलब कराया गया आपको? कैसे, लाइक पहले रनिंग हुआ या? पहले रनिंग ही हुआ सबसे पहले एंट्री हुई। अच्छा, रात में। अच्छा, कोई 12 बजे से बैठाने रखे, सुबह 5 बजे 5 बजे फाइनली हुआ आपका? हाँ, रेस चालू हुई थी। अच्छा, तो आप क्या जैसे थोड़ा थक से गए थे जब तक हुआ रनिंग या? नींद सी लग रही थी, थक गए थे। नींद नहीं आई पूरी रात? हाँ, पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत थक गए थे, पैर बहुत दर्द होने लगे बैठे बैठे। थकान महसूस हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, पूरी रात ऐसे बैठे रहे वहीं पे, इसलिए तो शरीर एकदम बिल्कुल शिथिल सा पड़ गया, सर्दी भी लगने लगती थी। तो आप सब लोग अभी जैसे क्या करेंगे, जॉब वॉब के लिए क्या देखेंगे? हम सब कुछ दूसरा देखेंगे, अब इसमें तो नहीं। अब हाँ, SSC GD वगैरह देखेंगे, अब इसमें तैयारी करेंगे। आपके परिवार वाले क्या, मतलब क्या उम्मीद करके बैठे हैं वहाँ? कुछ नहीं बैठे, अब हमारे लोगों के ऊपर उम्मीद थी, अब उम्मीद ही टूट गई होता है। In all of our interviews, Govind Yadav was one of the only men we met who had qualified for the next round. We had run into him a day earlier, the only one in his group to have made it. तो आपका हो पाया या नहीं हुआ? ग्रुप फर्स्ट में सर दौड़ पड़ी थी। अच्छा, स्टाफ भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है बस थोड़े अंडर इसलिए कर दिया, मतलब उनकी मन की बात है, जो आ गया वो करते गए, नहीं आया जिसको मन अच्छा हुआ तो कर दिया। मेरा नाम सर गोविंद यादव है और इनको हाइट में थोड़ी कम थी, इनको निकाल दिया गया था। 1.72 हाइट वाले हैं सर, और इनकी बहुत मतलब नाराज़ थे ये सर, और रो रहे थे, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं सर, नेक की बात थी।
आपको भी निकाल आप मुझे नहीं निकाला, मुझे तो फिट कर दिया ग्राउंड सर। आपको फिट कर दिया? जी सर। अच्छा, तो आप मतलब अभी अगले लेवल पे चले जाएंगे? जी सर। अगला क्या मेडिकल? हाँ मतलब मेरा मेडिकल होने को है, कल सुबह 5 बजे बुलाया गया है सर। अच्छा, 5 बजे मेडिकल के जी लिए बुलाया गया? जी सर। अच्छा, आप लोग यहाँ कितने बजे से वेट कर रहे थे वैसे? कितने बजे से आए हैं? यहाँ तो मैं कल 11 बजे से आया हूँ। रात के 11 नहीं, दिन के 11 बजे से। अच्छा, हाँ जी सर। 11 बजे से एंट्री 11 बजे हुई, लेकिन मैं घर से 11 बजे आया, 1:30 बजे यहाँ पर आ गया था ग्राउंड में, फिर यहीं पर खाया पिया और लेटे रहे। फिर उसके बाद जो है सर 1 बजे से एंट्री अंदर की गई। तो आप जैसे आपके ग्रुप में आप पास हो गए, और कितने हो गए पास? और मेरे भाई 2 थे, उनकी रेस नहीं पड़ पाई सर, और मैं हूँ 3 भाइयों में से मेरी पड़ी है सर। सिर्फ आप ही की हो पाई? जी सर। And when we asked Govind why he wanted to join the army, this was his answer. आप क्यों फौज में जाना चाहते हैं? हम तो सर इसलिए जाते हैं, हम 5-6 भाई हैं और मेरे लिए कुछ है नहीं सर, इसी वजह से इसमें दम लगाए हुए हैं। अच्छा, हम सोचते रहे हैं कि अगर 1-2 लग जाएंगे तो रिलेशन बनवा के सबको लगवा लेंगे सर।